Hello student, today I want to tell you something about fiscal policy. Fiscal policy is prepared by center government of any country. किसी भी कंट्री की जो सेंटर गवर्नमेंट होती है उसके थ्रू फिजिकल पॉलिसी प्रिपेयर की जाती है. ऑलमोस्ट फिजिकल पॉलिसी को प्रिपेयर करने का जो बेसिक एम होता है, गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको बेटर वे में ऑपरेट करना, सही तरीके से संचालित करने के लिए सरकार द्वारा फिजिकल पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाता है और उसको कंट्री पर अप्लाई किया जाता है ताकि गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटी है उनको स्मूथली ऑपरेट किया जा सके. देन फिजिकल पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. ऑलमोस्ट इट इज़ रिलेटेड फ्रॉम द government task, so it is known as the government policy. Regarding changes in taxes, almost it is related for changes in taxes, government spending, government expenditures, government borrowing, and affect aggregate demand of the country. Then fiscal policy is totally related. It is prepared by the government and it is related to the government activities. And in fiscal policy, almost government described about the tax structure of country. कि what is the tax structures, how many types of tax imposed in the countries, what are the main government expenditures, then the total government expenditures, how government manage their fundings and government borrowing, and the what is the demand structure of the country. These all things are described in fiscal policies. A policy under which government uses its expenditure and revenue program to produce desirable effect and avoid undesirable effect in the national income, production and employment. It means fiscal policy means that types of policies which explain about government expenditure and government revenue programs, कि how government collect revenue and what are the main government expenditures. Revenue and revenue programs, almost this is related from the desirable impact on economy. ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के जितने भी जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के प्रोग्राम्स होते हैं उनका बेसिक एम होता है एक डिज़ायरेबल इम्पैक्ट क्रिएट करना इनसाइड द कंट्री और रिड्यूस करना और अवॉइड करना अनडिज़ायरेबल इम्पैक्ट को नेशनल इनकम पे, कि कंट्री की नेशनल इनकम पे अनडिज़ायरेबल इम्पैक्ट लोअर टू लोअर हो, प्रोडक्शंस पे हो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. इन तीनों सेक्टर में गवर्नमेंट की एक्टिविटी के अनडिज़ायरेबल इम्पैक्ट लोअर टू लोअर हो, देन दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज नॉन एज fiscal policy. Then what is the difference between fiscal policy and monetary policy? Then fiscal policy is prepared by central government and monetary policy is prepared by RBI. It is related from government activities and it is related from the banking activities. It is include different types of instrument and monetary policy include different types of instrument. Then deals with taxations, government spendings. Fiscal policy dealing with almost the tax structures and government expenditures, but it deals with money supply. Monetary policy is related how to increase and how to decrease the supply of money inside the country, and fiscal policy maintain government expenditure and government revenues and deals with taxations, कि how much money collect with tax. It administered by the government. It is administered by government through various types of laws and policies. फिजिकल पॉलिसी को सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट किया जाता है, उसमें वेरियस टाइप्स के लॉज और पॉलिसीज होती हैं, बट इट इज़ कंट्रोल बाय आरबीआई थ्रू द इंटरेस्ट रेट एंड लेंडिंग रेट्स. ऑलमोस्ट मॉनेटरी पॉलिसी को जो कंट्रोल किया जाता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बैंक रेट्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है. मेजर्स टेक टाइम टू गेट पॉजिटिव इम्पैक्ट. ऑलमोस्ट इसमें जो भी मेजर्स होते हैं उनको पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने में टाइम लगता है, बट इसके मेजर्स जो होते हैं वो रैपिड रेट से लॉन्च हो जाते हैं. तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों पॉलिसीज़ में. देन व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इज़ टू control inflation or deflation in the market. There are two types of situations. First is inflation and second is deflation create with the supply of money. In inflation, supply of money increase and in deflation, supply of money decrease. So the basic objective of monetary policy to control both type of situation inside the country in the market, कि almost deflation और inflation की condition inside the country
जो है क्रिएट ही नहीं हो, किसी स्टाइल का कोई भी फ्लक्चुएशन जो है वो ना हो, ना इन्फ्लेशन हो और ना डिफ्लेशन की सिचुएशन हो। मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इट्स मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की कंट्री में इनसाइड द स्टेबिलिटी रहे, किसी स्टाइल का कोई भी फ्लक्चुएशन क्रिएट नहीं हो। इट हेल्प इन डाइवर्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम अनडिज़ायरेबल चैनल टू डिज़ायरेबल चैनल। ऑलमोस्ट फिजिकल पॉलिसी का सेकेंड ऑब्जेक्टिव्स होता है कि ये इनसाइड द कंट्री जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक्सेट्रा, किसी भी स्टाइल के रिसोर्सेज, तो उनका अनडिज़ायरेबल चैनल में जो यूजेस हो रहा है उसको कंट्रोल कर करके उनको ट्रांसफरिंग करना डिज़ायरेबल चैनल की तरफ, कि डिज़ायरेबल सेक्टर की तरफ रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो। इट हेल्प इन अचीविंग वेलफेयर ऑब्जेक्टिव इनसाइड द कंट्री। जो बेसिक एम है गवर्नमेंट का कि टू इंक्रीज वेलफेयर, तो ये उस वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती है। बेसिकली टू रिड्यूस इनइक्वलिटी बिटवीन रिच एंड पुअर एंड इंक्रीज वेलफेयर। ऑलमोस्ट फिजिकल पॉलिसी के थ्रू रिचर सेक्शन और पुअर सेक्शंस के बीच जो डिस्पैरिटीज़ अवेलेबल रहती है, ये उस डिस्पैरिटीज़, उस गैप को रिड्यूस करती है, इनइक्वलिटी को रिड्यूस करती है और वेलफेयर को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। द स्टेजेस ऑफ फिजिकल पॉलिसी, सबसे पहला है न्यूट्रल। In this equilibrium pace for the economy, in this case government spending is entirely funded by tax revenue and there is no need of borrowing. न्यूट्रल में यह होता है कि ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं, उन लॉन्चिंग प्रोग्राम पर गवर्नमेंट अपनी टोटल रेवेन्यू को एक्सपेंड कर देती है। देन देयर इज़ नो नीड ऑफ बोरोइंग, किसी स्टाइल का कोई डेफिसिट शो नहीं किया जाता है, गवर्नमेंट किसी स्टाइल की कोई भी बोरोइंग नहीं लेती है। जितनी गवर्नमेंट की इनकम होती है एटलीस्ट गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को उसी के इक्वल रखती है। उसके बाद है एक्सपेंडिचरी। This pace where the government spending exceed tax revenue. This happened during the time of recessions. At the time of recessions, ऑल ओवर द कंट्री में क्राइसिस की सिचुएशंस होती है, मनी की सप्लाई बहुत लोअर होती है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट इस पेस में क्या करती है कि टैक्स से जितनी रेवेन्यू कलेक्ट होती है उससे भी एक्सेस में वेलफेयर के लिए और प्रोग्राम्स के लिए गवर्नमेंट स्पेंड कर देती है। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्शनरी। इन दिस स्पेस वे आर गवर्नमेंट स्पेंडिंग लोअर देन द टैक्स रेवेन्यू, दिस अंडरटेकन पे द गवर्नमेंट डेप्ट। ऑलमोस्ट जब गवर्नमेंट को अपने डेप्ट का पे करना पड़ता है, उनकी मैच्योरिटी डेट क्लियर आ जाती है, तो गवर्नमेंट को अपने डेप्ट को पे करने के लिए जो टैक्स से जो रेवेन्यू कलेक्ट हुई है, एटलीस्ट उस रेवेन्यू में से एक पार्ट को डेप्ट को पे करने में खर्च करना पड़ता है। तो इस स्टाइल की सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है उसको गवर्नमेंट लोअर कर देती है ताकि डेप्ट को इजी गोइंग पे किया जा सके। मेथड ऑफ फंडिंग्स, व्हाट आर द मेथड्स टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। सबसे पहला है रिकवरी ऑफ लोन्स, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स लोन्स टू वेरियस स्टेट इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री। ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के थ्रू वेरियस टाइप्स के लोन्स जो है वो ग्रांट किए जाते हैं डिफरेंट स्टेट को। इनसाइड द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री भी गवर्नमेंट लोन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। व्हेन गवर्नमेंट रिकवर दीज लोन्स गवर्नमेंट गेट मोर मनी। जब गवर्नमेंट इन लोन्स को रिकवर करने के लिए एफर्ट्स लगाती है तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सेस में मनी की सप्लाई हो जाती है, दैट इट कैन नाउ यूटिलाइज फॉर द वेलफेयर, और उसको गवर्नमेंट जो है कंट्री के वेलफेयर के लिए यूटिलाइज करती है। तो फर्स्ट मेथड्स है रिकवरी ऑफ लोन, कि गवर्नमेंट को अपने जो लोन पे कर रखे हैं किसी भी सेक्टर को, किसी भी कंट्री को, किसी इंस्टीट्यूशंस को, तो गवर्नमेंट को एफर्ट्स लगाने चाहिए उन लोन की वापस रिकवरी करने के लिए। नेक्स्ट आता है डिसइन्वेस्टमेंट इज अनदर टाइप्स टू कलेक्ट फंडिंग्स। गवर्नमेंट होल्ड्स इक्विटी और शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी इनसाइड द कंट्री पब्लिक सेक्टर्स जो एंटरप्राइजेज हैं उनकी कैपिटल में जो है गवर्नमेंट का भी रेशियो होता है, ऑलमोस्ट कहीं 90%, कहीं 100%। तो गवर्नमेंट अपने उस होल्डिंग को सेल कर करके भी फंड कलेक्ट कर सकती है, तो गवर्नमेंट उन इक्विटी को सेल कर देती है। इट कैन रेस फंड बाय सेलिंग द होल्डिंग इन द मार्केट। ऑलमोस्ट गवर्नमेंट अपने शेयर को रिड्यूस कर देती है 90 से
50 to 60% तक आती है, 40, 30, 20% की होल्डिंग को सेल कर सकती है। इट लीड्स द रिडक्शन इन एसेट्स हेल्ड बाय गवर्नमेंट। इस टाइप के गवर्नमेंट के इस स्टेप से, डिसइन्वेस्टमेंट के स्टेप से गवर्नमेंट की जो एसेट्स है वो रिड्यूस हो जाती है। जहाँ पहले किसी कंपनी की, किसी फर्म की, इंडस्ट्री की ऑनरशिप टोटल गवर्नमेंट की थी, वहाँ अदर सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है बोरोइंग्स होता है। इट इज़ बेसिकली मीन्स दैट गवर्नमेंट इज बोरोइंग मनी फ्रॉम द various institutions inside the country and outside the country. This is the another sources to collect fund. In this types of sources, government can get borrowing from the various types of institutions, banks, monetary institutions, private sectors, etc. inside the country and outside the country ये borrowing हो सकती है। सरकार आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों जगहों से भी borrowing प्राप्त कर सकती है। The government may choose to borrow the fund from public बाय इशूइंग बॉन्ड और ट्रेजरी बिल। इट मे बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट जो है वो बोरोइंग पब्लिक से भी एक्सेप्ट कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ इशूइंग बॉन्ड एंड ट्रेजरी बिल। गवर्नमेंट उनके लॉनिंग के बदले में उनको ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स जो है वो इशू कर देती है। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बोरो फंड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक एंड अनदर कंट्रीज। इट मे बी पॉसिबल्स कि गवर्नमेंट ये बोरोइंग जो है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लेती हो, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, नाफ्टा, वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो गवर्नमेंट ऑलमोस्ट जो लोन लेती है वो या तो वर्ल्ड बैंक के थ्रू लिए जाते हैं इनसाइड द कंट्री इन इंडिया, और IMF, दो जो है बैंक, उनसे लोन लेने का काम हमारे देश में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद होता है टैक्सेस। द मोस्ट इफेक्टिव वे for the government is also increase tax rates and impose new tax. This is the another sources, almost this is very powerful sources inside the country है। इससे किसी स्टाइल की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। हाँ, डिससेटिस्फेक्शन लेवल इनसाइड द कंट्री हायर हो सकता है, बट ये गवर्नमेंट का राइट है, गवर्नमेंट टैक्स को इम्पोज कर करके वेल्थ को जनरेट कर सकती है। तो टैक्स रेट्स को इंक्रीज कर सकती है या वेरियस टाइप्स के टैक्स भी इम्पोज कर सकती है। ऑलमोस्ट जो टैक्सेस रनिंग में है उनकी रेट को इंक्रीज़ किया जा सकता है, या टैक्स के जो हैं टाइप्स वो इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं और उनके बिहाफ पे भी गवर्नमेंट फंडिंग कलेक्ट कर सकती है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसीज, ऑलमोस्ट इंस्ट्रूमेंट है। बजटरी सरप्लस और डेफिसिट हो सकता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट एंड टैक्सेशंस। Then public debt. Public debt refer to the borrowing by government from within the country or from abroad. In public debt, we include the borrowing which is taxed by central government inside the country and outside the country, from abroad and other sectors. Private individual association of individuals, from banks, NBF. It can be classified in the three ways. Almost गवर्नमेंट को borrowing का right है, गवर्नमेंट पब्लिक डेप्ट जो है वो ले सकती है। गवर्नमेंट कहीं से भी, प्राइवेट, पब्लिक, इनसाइड, आउटसाइड, स्टेट लेवल, कहीं से भी ले सकती है। देन दिस इज क्लासिफाइड इंटरनल एंड एक्सटर्नल, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बोरोइंग। देन फर्स्ट, इंटरनल पब्लिक डेप्ट, व्हेन द गवर्नमेंट बोरोज मनी विद इन द कंट्रीज from the citizen, financial institutions and central bank, then it is known as internal borrowing. इंटरनल बोरोइंग की फील्ड में गवर्नमेंट जो बोरोइंग फंक्शंस ले करती है वो गवर्नमेंट या तो इनसाइड द कंट्री इंडियन सिटीजन से बोरोइंग ले सकती है, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकती है, और सेंट्रल बैंक RBI से भी ले सकती है। देन दिस टाइप ऑफ बोरोइंग इज नॉन एज इंटरनल बोरोइंग। देन एक्सटर्नल बोरोइंग, व्हेन गवर्नमेंट बोरोइंग द फंड फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट से जब बोरोइंग की जाती है देन इट इज़ नॉन एज इंटरनेशनल पब्लिक डेट। एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इट मे बी पॉसिबल, ये कुछ भी हो सकता है। एक्वायरिंग लोन फ्रॉम आउटसाइड इज कंपेरेटिवली डिफिकल्ट एज द अदर पार्टी। देन एक्सटर्नल पब्लिक डेप्ट इज टिपिकल एंड कॉस्टली, बट इंटरनल डेप्ट इज ईजी एंड द बर्डन जो होती है उसकी शिफ्टिंग की यहाँ बहुत लोअर होती है, जबकि इसकी बर्डन बहुत हाई होती है। देन फर्स्ट स्टडी द फाइनेंशियल पोजीशंस, ऑलमोस्ट जो भी
इंस्टीट्यूशंस होती है इनसाइड द इंटरनेशनल लेवल पर, वो जब लोन इशू करती है तो वो पहले हमारी कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशंस पे स्टडी करती है ऑफ द कंट्री एंड देन ओनली ग्रांट द लोन, और उसके बाद ही लोन को ग्रांट किया जाता है। तो ये थोड़ी सी टिपिकल पॉलिसी है। एक्सटर्नल लोन्स लेने में थोड़ा सा टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाता है। देन प्रोडक्टिव डेब्ट, द डेब्ट इज accepted to create assets which will yield income sufficient to pay the principal amount and interest. It is known as productive debt. Productive debt वो होता है कि जिससे हम ये एक्सेप्ट करें कि ये किसी स्टाइल की एसेट्स जनरेट करेगा, किसी स्टाइल की इनकम को जनरेट करेगा, ताकि उसके थ्रू आप प्रिंसिपल अमाउंट को इजी गोइंग विथ इंटरेस्ट पे कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स दे आर एक्सेप्टेड टू पे द वे ऑफ सेल्फ लिक्विडेटिंग्स, ताकि वो जो लोनिंग आपने लिया है उसके यूटिलाइजेशन के बिहाफ पे इतनी लिक्विडिटी क्रिएट हो कि आप उस लोनिंग की अमाउंट से ही वापस आप पे कर सकते हो। अनप्रोडक्टिव डेप्ट, द अदर हैंड अनप्रोडक्टिव डेप्ट इज द डेप्ट दैट ड्रेज द फाइनेंसिंग अनप्रोडक्टिव एसेट्स और हैवी अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स। जिस डेप्ट के बिहाफ पर हैवी अनप्रोडक्टिव एसेट्स इनसाइड द कंट्री जनरेट होती है, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर इनसाइड द कंट्री जनरेट होती है, देन दिस टाइप ऑफ डेप्ट इज नॉन एज अनप्रोडक्टिव डेप्ट एंड सच डेप्ट इज डेट वेट डेप्ट। और ये ओनली इनसाइड द कंट्री एक वेट या बर्डन जो है वो इंक्रीज करते हैं। शॉर्ट टर्म्स लोन, दिस लोन आर टू बी रीपेड विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसको हमें पे करना कंपलसरी होता है। यूजुअली फॉर अ लिमिटेड अमाउंट में इस स्टाइल के लोन्स जो है वो दिए जाते हैं। ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट की नीड को फुलफिल करने के लिए अवेलेबल होते हैं। देन शॉर्ट टाइम पीरियड्स लोन का टाइम पीरियड फिक्स होता है एंड इट इज़ ओनली फॉर 1 ईयर। लॉन्ग टर्म लोन, द लोन विच इज़ टू रीपे आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, जिसकी हमारा पेमेंट जो है थोड़ा सा लॉन्ग में हो, 1 to 20 ईयर्स जो है इसका टाइम पीरियड होता है। प्रोवाइड हॉप कैन फॉर द, ये जो लार्ज अमाउंट में ये आपको लोन दिए जाते हैं, इट विल ये आपके हेल्पफुल होते हैं उस कंट्री के कि उससे कंट्री लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट को इजी गोइंग लॉन्च कर सकती है। टैक्सेशन, टैक्स इज़ द लीगल एंड कंपलसरी पेमेंट होता है विच इज़ पेड टू द गवर्नमेंट बाय द पीपल्स। ऑलमोस्ट पीपल पर इम्पोज किए जाते हैं। पीपल को टैक्स को गवर्नमेंट को पे करना कंपनसेशन है उसकी, एसेंशियल है, कंपलसरी अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इट इज़ मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव वे ऑफ गवर्नमेंट टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड इन द कंट्री। ऑलमोस्ट ये एक कॉमन वे है, एक इफेक्टिव वे है जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड पे जो है वो इम्पैक्ट शो कर देती है। देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। Then the direct tax, which is where the liabilities to pay is incidence on lie the same persons, जहाँ पर जिस पर्टिकुलर पर्सन पर वो इम्पोज किए गए हैं एटलीस्ट ये उसी को पे करने हैं। एंड हेयर द शिफ्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल टू अनदर पार्टीज़, यहाँ आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, एसेट्स टैक्स, दिस टाइप ऑफ टैक्स ऑलमोस्ट उसी के थ्रू पे किए जाते हैं जिस पर डायरेक्ट इम्पोज किए जाते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा। एंड इनडायरेक्ट टैक्स वेयर शिफ्टिंग इज पॉसिबल, देन लायबिलिटीज टू पे वन एंड इंसिडेंस टू द टैक्स ऑन द डिफरेंट पर्सनस, और उन पर्सन वो डिफरेंट पर्सन पर उसकी शिफ्टिंग पॉसिबल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सेल टैक्स, वेट, जीएसटी एक्सेट्रा। Then during the time of inflations, demand is more than aggregate supply. Aggregate demand is more than aggregate supply. At the time of inflation, almost aggregate demand is too much high than aggregate supply. Then the government increase tax rate. गवर्नमेंट इस स्टाइल में इन्फ्लेशन के टाइम पीरियड में टैक्स रेट को हाई कर देती है, न्यू टैक्सेस इम्पोज कर सकती है टू रिड्यूस द डिमांड एंड परचेजिंग पावर ऑफ पीपल। दिस विल बी रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ मनी सप्लाई। ऑलमोस्ट टैक्स की रेट हाई होने के बिहाफ पे मनी का ट्रांसफ़र जो होता है वो गवर्नमेंट के हाथों में चला जाता है, तो सप्लाई ऑफ मनी लोअर हो जाती है इकोनॉमिक में, एंड कंट्रोल द इन्फ्लेशरी गैप। और जो इन्फ्लेशरी गैप इनसाइड द कंट्री क्रिएट होता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की वजह के बीच में जो डिफरेंस आ जाता है उससे जो डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है एटलीस्ट उस गैप को रिड्यूस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टैक्स। देन एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशंस
Aggregate demand is less than aggregate supply. Here the supply is too much high and aggregate demand is too much lower. Then the deflationary gap create between the aggregate demand and aggregate supply. Then the government reduce tax, गवर्नमेंट टैक्स रेट को रिड्यूस कर देती है, जो डिफरेंट टाइप्स के टैक्स इम्पोज किए थे उनको भी रिड्यूस कर देती है. एंड में ऑल्सो कट सम टैक्सेस टेम्परली, और कुछ टैक्स को टेम्परेरी कट भी कर सकती है. दिस वुड रिजल्ट इन द इंक्रीज द मनी सप्लाई. गवर्नमेंट के इस एफर्ट्स के बिहाफ पे इनसाइड द कंट्री मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है इकोनॉमिक में एंड विल कंट्रोल ऑन द डिफ्लेशनरी गैप, और जो डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है इनसाइड द कंट्री वो रिड्यूस हो जाता है. बजटरी सरप्लस. It is a situation where the revenue earned by the government is more than the expenditure. In situation of surplus, the government revenue is high and government expenditure is lower. Then the difference between revenue and expenditure is known as the surplus. कि जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हाई अर्न करती हो और गवर्नमेंट बहुत लोअर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर करके उन पे उसको एक्सपेंड करती हो तो वो सिचुएशन में सरप्लस हो जाता है. सरप्लस अमाउंट इज़ यूज टू रीपेमेंट ऑफ लोन एंड कैन बी केप्ट एज अ रिजर्व फॉर द फ्यूचर्स. ऑलमोस्ट गवर्नमेंट सरप्लस जो अमाउंट होती है उसका यूटिलाइजेशन डिफरेंट टाइप से करती है. गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल उसका यूटिलाइजेशन करती है टू रीपे इट्स लोन. जो भी बोरोइंग गवर्नमेंट ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल से, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर से कहीं से भी ली है तो गवर्नमेंट उन लोन्स की रीपेइंग कर सकती है और गवर्नमेंट उसको एज अ रिजर्व फॉर फ्यूचर के लिए भी सेफ भी कर सकती है. इट कैन ऑल्सो यूज टू मेक डिज़ायर परचेज्ड, और जो भी गवर्नमेंट की डिज़ायर परचेज होती है वर डिलेड इन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. जो भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होती है गवर्नमेंट उन पर भी इनको एक्सपेंड कर सकती है. इट इज़ अ साइन दैट गवर्नमेंट इज़ रनिंग इकोनॉमी विथ एफिशिएंटली. ऑलमोस्ट जिस भी कंट्री में सरप्लस का बजट होता है तो वहाँ ये शो होता है कि गवर्नमेंट बहुत ही इफ़ेक्टिव मैनर में, बहुत ही एफिशिएंसी के साथ अपना स्मूथली वर्क कर रही है. Budget deficit, it is a situation where the revenue earned by the government is less than the expenditure. In these situations, government revenue is lower than the expenditure. It means expenditure is too much high. Government development expenditure बहुत high amount में करती है और government की जो revenue होती है various sources से वो बहुत lower हो जाती है. At this time, government reduce expenditures on public welfare. अब गवर्नमेंट इस एफर्ट्स, इस सिचुएशंस को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट हाई टैक्स रेट जो है वो इम्पोज कर देती है ताकि गवर्नमेंट की अर्निंग को इम्प्रूव किया जा सके. टैक्स रेट को इंक्रीज कर देती है एंड ऑल्सो ऑप्ट बोरोइंग्स, और गवर्नमेंट बोरोइंग भी लेती है. तो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देती है फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद गवर्नमेंट बोरोइंग इंक्रीज कर देती है, टैक्स की रेट को इम्पोज कर सकती है. द सरप्लस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स कैन बी यूज्ड और इट मे बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट ने जो प्रीवियस ईयर में जो रिजर्व मेंटेन किया था सरप्लस के बजट के टाइम में, उस सरप्लस को भी गवर्नमेंट यहाँ यूटिलाइज कर सकती है. इट इज़ अ साइन दैट गवर्नमेंट इज़ नॉट रनिंग एफिशिएंटली एंड the condition of deficit is show that the government is not working effectively, efficiently. Government expenditure. During the time of inflation, government decide to reduce expenditure on public welfare like police, military, courts and educations. ऑलमोस्ट एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन मनी की सप्लाई इनसाइड द कंट्री ऑलमोस्ट वैसे ही बहुत हाई होती है, प्राइस लेवल बहुत हाई हो रहे हैं तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने का डिसाइड करती है. गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को किन किन सेक्टर में रिड्यूस करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट जो पब्लिक वेलफेयर के प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही थी, गवर्नमेंट उन पब्लिक वेलफेयर के प्रोग्राम्स को बहुत कम क्वांटिटी में लॉन्च करती है. फिर गवर्नमेंट पुलिस, मिलिट्री, कोर्ट, एजुकेशन, इन सभी सेक्टर्स पे अपने जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं एटलीस्ट उनको भी गवर्नमेंट रिड्यूस कर देती है. दिस इज़ रिजल्ट फॉल इन एग्रीगेट डिमांड इनसाइड द कंट्री. इसके बिहाफ पे क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो बहुत लोअर हो जाती है. जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी नहीं तो पब्लिक की इनकम जनरेट नहीं होगी, और जब इनकम जनरेट नहीं होगी तो गवर्नमेंट की डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगी, विच लीड्स रिडक्शन इन द इन्फ्लेशनरी गैप. और उसके बिहाफ पे इनसाइड द कंट्री which leads to reduction the inflationary gap, और जो inflationary gap inside the country create हुआ था वो reduce हो जाता है. at the time of deflation के time period में government decide to increase its expenditure for the welfare.
डिफ्लेशन में मनी की सप्लाई बहुत लोअर होती है इनसाइड द कंट्री, किसी स्टाइल की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, इंडस्ट्री लॉकआउट हो चुकी होती है। तो गवर्नमेंट इस कंडीशन में पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करती है, वेरियस टाइप्स के प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, इंडस्ट्री का सेटअप करती है और वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स लगाती है। दिस इंजेक्ट मनी इन इकोनॉमी एंड हेल्प टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। इस स्टाइल से ये गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो एक इंजेक्ट का काम करते हैं इकोनॉमी में और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि जब प्रोडक्टिव एक्टिविटी सक्सेसफुली रनिंग होने लगती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे तो वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। देन द जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है तो रिड्यूस द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रिड्यूस होते ही इनसाइड द कंट्री अर्निंग लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाता है और अर्निंग लेवल स्ट्रॉन्ग होते ही लोगों का परचेजिंग पावर इंक्रीज होता है तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होती है। इट लीड्स टू रिडक्शन इन डिफ्लेशनरी गैप और ये हेल्प करता है जो डिफ्लेशनरी गैप इनसाइड द कंट्री क्रिएट होता है उसमें। उसके बाद है फिस्कल स्ट्रेट जैकेट। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्कल स्ट्रेट जैकेट इज जनरल इकोनॉमी प्रिंसिपल। ये एक इकोनॉमिक का प्रिंसिपल है दैट सजेस्ट दैट स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शंस ऑन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग एंड पब्लिक सेक्टर बोरोइंग। ये प्रिंसिपल ये एक्सप्लेन करता है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट की जो भी स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की वो भी बोरोइंग है उस पर कोई कंट्रोल होना चाहिए, रूल्स होना चाहिए, रेगुलेशंस होना चाहिए, उनका कोई लिमिटेशंस होना चाहिए। बजट डेफिसिट जो है वो ओवर ए टाइम पीरियड एक्सेस में नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को अपने जितने भी खर्चों को गवर्नमेंट कर रही है बहुत ही सोच समझ के और रेगुलेटिंग मैनर में गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये दिस टर्म इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट जैकेट। ये जो टर्म क्रिएट हुई है वो स्ट्रेट जैकेट टर्म से क्रिएट होती है जहाँ ये होता है कि आपको एटलीस्ट कंट्रोल करना चाहिए, कंसिडरेशंस करनी चाहिए अपनी, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए बहुत ही बेटर मैनर में पब्लिक रेवेन्यू को कंट्रोल कर करके और लिमिटेड एरिया में उसका एक्सपेंडिचर करो। वेरियस स्टेट्स ने इस टाइप्स की जो है वो उनको फॉलो कर रखा है। देन थैंक यू।